Yeah. So we're talking about can exercise prevent COVID-19? यानी कि कोरोना वायरस से बच सकते हैं आप लोग एक्सरसाइज से, हम बच सकते हैं एक्सरसाइज करने से? सो यही है आज का टॉपिक एंड इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग इन डिटेल. सो स्टे ट्यून्ड, वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. राइट नाउ वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन द क्लास, and once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. So people who have joined in already can comment and let me know that you are a part of the class. You are able to see and hear. आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो. Confirm, comment and acknowledge करो. I can see 220 people live. Kiran Kumar, hello, very good morning. $250 people. Sheena K, hi Sheena, good morning. I'm back after 3 months. Where were you since 3 months? Chitralatha, hello. Archana ji, very good morning. So around 300 people live with 118 hearts. So we'll wait for 2 more minutes before we start with the class. Can exercise prevent COVID-19? Is the topic for today. Manish Sharma, good morning. I'm very good. Glad to be back in a class after ages. Yes, so why didn't you attend since so many days? I take regular classes. I was looking forward कि आप लोग जो रेगुलर आते थे अचानक आना बंद हो गया है. Is everything all right? So good to see you again and hope to see you regular now. So every day one class, 10:30 a.m. Okay. I'm good, Sheena ji. How are you? I hope all good. Okay, so 311 people. Let us wait for 1 more minute before we start. So what do you guys think? आप लोगों को क्या लगता है एक्सरसाइज करने से प्रिवेंशन हो सकता है कोविड-19 का? कैन एक्सरसाइज प्रिवेंट कोविड-19? आप लोगों को क्या लगता है? Yes sir, all good, only sitting at home. That's what you're supposed to do. And everyone is supposed to do that only. कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है. Unless it is very important and very urgent. So उसके बारे में बात करेंगे हम लोग इन डिटेल में कि why you should sit at home during this phase. Sir, actually I was teaching in a morning school which was clashing with the morning sessions of time. That's why due to work commitment I had to skip your wonderful class, but I watched the session. Thank you so much. Thank you Manish ji and good to see you in the class again. अभी तो आपकी छुट्टी होगी right? Schools की. So I hope to see you daily at 10:30 a.m. Azhar bhai, very good morning. Let us wait for 30 seconds and then we will start. So बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक्सरसाइज करने से कोविड-19 की प्रिवेंशन हो सकती है? कैन एक्सरसाइज प्रिवेंट कोविड-19? So now, sir, it's a complete lockdown back here in Kolkata, so cannot miss the golden opportunity. Thank you so much for your kind words, Manish ji. I hope you are safe और सेफ्टी का और प्रिकॉशंस पूरे ले रहे हो. चलो, now let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. Intro हो गया and yeah.
सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड टॉपिक विच इज कैन एक्सरसाइज प्रिवेंट कोविड-19। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट डू यू गाइज थिंक कि एक्सरसाइज प्रिवेंट कर सकती है कोविड-19 या नहीं। सो अर्चना जी ने बोला है यस टू सम एक्सटेंट। श्री पवन, हाई, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू श्री पवन? व्हाट एक्सरसाइजेस यू डिड टुडे मॉर्निंग होम वर्कआउट्स में? ओके, सो गाइज लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कोविड-19 इज, क्या है ये एंड कैसे इफेक्ट हो रहा है इससे सब कुछ, बीट एनीथिंग, बीट पीपल्स लाइफ, बीट पीपल्स लाइफस्टाइल, बीट पीपल्स इकोनॉमी एंड एवरीथिंग इज गेटिंग इफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लेट अस क्विकली, आई एम श्योर, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप सबको पता है, बट जस्ट टेक अ क्विक, लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट इट इज एंड कहाँ से ओरिजिन हुआ है और क्या हो रहा है। How are you doing? I'm very good, thank you, Sri Pavan. Exercise increase immunity, hence yes, fantastic, Pradeep ji, very nice. Yeah, so COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस, आजकल बच्चे से लेके बूढ़ों तक का ये वर्ड, ये नाम सबको पता है बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस वायरस, बिकॉज ऑफ द डिजास्टर ऑफ दिस वायरस। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि इससे क्या हो रहा है, नॉट ओनली एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अ स्पेशल प्लेस और वन प्लेस, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी इट डेवलप्ड नेशंस, बी इट डेवलपिंग नेशंस, बी इट अंडर डेवलप्ड नेशंस, हर एक जगह पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इफेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि खाली लोगों की तबीयत खराब हो रही है या लोगों को थोड़ा सा कोई इचिंग प्रॉब्लम या कोई ऐसे माइनर इशू नहीं है, छोटा सा इशू नहीं है, ऐसे लोगों की जानें जा रही। अब तक का हजारों लोगों ने अपनी जानें गवा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, दिस कोरोना वायरस की वजह से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स। ये इतना ज्यादा सीरियस है। तो है क्या, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ऑब्वियसली ये आया है चाइना से, एज वी ऑल नो, और ये स्प्रेड होता गया। व्हाट इज द मीडियम ऑफ इट्स स्प्रेडिंग, कैसे स्प्रेड हो रहा है ये, है ना? सो इसका स्प्रेड होने का एक ही जो तरीका होता है वो होता है थ्रू फिजिकल टच, टू कॉन्टैक्ट। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड फिजिकल टच। किसी को हुआ, उनसे किसी को हुआ, उनसे किसी को हुआ, इट्स फॉर्मिंग अ चेन। ओके, उस चेन की वजह से ये पूरा स्प्रेड होते जा रहा है। किसी को हुआ, उसको किसी ने टच किया तो उसमें आ गया, उसने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को टच किया, उसने किसी को किया, ऐसे स्प्रेड होता जा रहा है। एक कंट्री से स्टार्ट हुआ है, बट ड्यू टू टुडेज लाइफस्टाइल बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, not unnecessarily because of many genuine reasons like the business, like the work, और कुछ लोग घूमने भी जाते हैं। So it is absolutely accepted कि yes, people travel a lot, and वो travel की वजह से एयरपोर्ट्स में या फिर कहीं पे भी आउट ऑफ द कंट्री someone has traveled, for example someone got to a X place, जहाँ पे किसी को था, वहाँ पे वो किसी से मिले, उनके थ्रू ही बिकेम अ कैरियर, या इनको भी हो गया। अब जब वो वापस अपने कंट्री में आए तो वो 10, 15, 20, 100 लोगों से मिले, उनको हुआ। इस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है। तो मेजर जो डिजास्टर हुआ है वो सबसे ज्यादा इटली में हुआ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जाने जा चुकी हैं। उसके बाद चाइना, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, यू नेम द कंट्री एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पे भी हुआ है। एंड इंडिया इज नॉट एन एक्सक्लूजन, बट द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि यहाँ पे थोड़ा सा लेट और थोड़ा सा जैसे ही स्टार्ट हुआ है वैसे ही अवर गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी गुड मेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। अभी भी कर्फ्यू चल रहा है, इफ यू गाइज आर अवेयर कि महाराष्ट्र में जो हमारा ऑल ओवर इंडिया वाला कर्फ्यू था, संडे वाला, इट गॉट एक्सटेंडेड। कल जो है, कल शाम में वापस एक कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कब तक का लास्ट होगा वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। महाराष्ट्र में अगेन इट इज अ कर्फ्यू बिकॉज दैट्स द ओनली वे पीपल आर सेफ, बिकॉज नो वन इज अलाउड टू गो आउट, एवरीवन इज सिटिंग एट देयर होम। इसके वजह से नो गैदरिंग, नो क्राउड पुलिंग, नो क्राउडेड प्लेसेस, नो ट्रांसपोर्टेशन, नथिंग। यानी कि अगर वो वायरस किसी एग्जाम्पल किसी बस स्टॉप पे है, ठीक है, बस स्टॉप को किसी ने टच किया, या किसी के डोर हैंडल पे है, किसी डोर हैंडल पे कोई गया, कोई रेस्टोरेंट में गया, कोई कहीं भी गया, नेवर नो, बिकॉज यू कैन नॉट सी द वायरस विद योर नेकेड आई। हम उसको डायरेक्टली हमारी आंखों से देख नहीं सकते। दिस जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी द विद अवर नेकेड आईज। हमको माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़ता है, ऐसे नहीं दिखता है, राइट? हमको स्कूल में भी साइंस में दिखाए जाते थे माइक्रो ऑर्गन्स, वो माइक्रोस्कोप और वो सब इक्विपमेंट्स के जरिए से दिखाए जाते थे। डायरेक्टली हम उनको नहीं देख सकते बिकॉज दे आर सो टाइनी एंड सो स्मॉल। इसी तरह हम उसको देख नहीं सकते कहाँ पे कौन सा वायरस है, जर्म से वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड वो किसी को भी लग सकता है। सो द ओनली वे टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड स्प्रेड होने से उसको जो बचाने का एक तरीका है वो है कि अपने अपने घर में बैठे रहो, घर से बाहर नहीं निकलना है।
ठीक है, एंड फॉर दैट आवर गवर्नमेंट इज फुल्ली सपोर्टिंग अस, पूरी तरह से हमको डायरेक्शंस दिखा रही है, बिकॉज दोज पीपल, देर आर सम पीपल, नॉट एवरी वन, बट छोटा सा नंबर्स ऐसा भी है जो लोग अननेसेसरीली बाहर निकल रहे हैं, अभी भी वो लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इसको, एंड इट इज दे आर नॉट रियलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस वायरस, कि इससे जाने भी जा रही है, इतनी कंट्रीज में इतनी जगह पे लोगों की जाने जा चुकी है। तो ये कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको नहीं होगा, बट यू कैन बी अ कैरियर। आपको, आपके पास फॉर एग्जाम्पल, नॉट आपके पास, आई वुड रादर चूज अनदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पर्सन को की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, उसके पास ये वायरस आ गया, अब उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो उसको इम्पैक्ट होने नहीं दे रही है, बट ही कैन एक्ट एज अ कैरियर। उसके पास जो वायरस आया उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, बट वो जाके किसी से मिल रहा है तो उसको पास ऑन हो रहा है ना। तो ये कैरियर जैसे काम हुआ, लाइक अ ट्रक गोडाउन से सामान लेके शॉप्स तक पहुंचाया, ठीक है। इसी तरह से एक पर्सन, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है बट ही कैन एक्ट एज अ कैरियर, किसी और को उसके थ्रू लग सकता है। अब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट। इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसको कुछ नहीं हुआ, बट इसके थ्रू जिसको लगा हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक और उसको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो यू मे हैव अ स्ट्रांग इम्यूनिटी बट स्टिल यू वांट टू कंसिडर स्टेइंग एट होम बिकॉज यू कैन एक्ट एज अ कैरियर। दैट इज द रीजन इतने कर्फ्यूज, इतना स्टे एट होम बोला गया है, ऑफिस शट डाउन है, वर्क फ्रॉम होम, एवरीथिंग इज शट डाउन, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैव बीन शट डाउन। यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई में पब्लिक लोकल ट्रेन जो है, बसेस है, एवरीथिंग इज स्टॉप, कुछ नहीं है, बिकॉज थोड़े दिन घर में बैठना, थोड़े दिन का थोड़ा सा वट एवर इट इज, काम पे नहीं जाना या फिर बाहर नहीं निकलना इज मच मोर बियरेबल देन गेटिंग द डिजीज, गेटिंग द वायरस और स्प्रेडिंग इट, राइट। तो इतना थोड़ा सा नुकसान झेल लेना इट्स ओके कंपेयर टू जान गवा देना, है ना। आप हमारी नहीं तो हमारे वजह से किसी की भी अगर जा रही है तो दैट टू इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। किसी की तो जान जा सकती है, या फिर जान अगर नहीं भी गई फॉर एग्जाम्पल तो सफरिंग, पेन, है ना। और जिसको होता है सिर्फ उसको ही नहीं सफ़र करना पड़ता है, उसकी पूरी एंटायर फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज हम हमारे लव्ड वंस को तकलीफ में, पेन में नहीं देख सकते, राइट। सो अगर एग्जाम्पल एक्स पर्सन को कुछ होता है तो उस एक्स पर्सन की पूरी फैमिली सफ़र करती है उस चीज़ की वजह से, राइट। सेकेंडली, ये बीमारी बाकी बीमारियों या बाकी तबीयत खराब होने से क्या होता है कि लोग आपके आसपास आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको मॉरल सपोर्ट देते हैं, बट ये वाला ऐसा है कि आपके आसपास कोई आ भी नहीं सकता, है ना। एक्स पर्सन को अगर हुआ है तो उस एक्स पर्सन के पास कोई आ जा भी नहीं सकता, फियरिंग दैट उसके वजह से किसी और को स्प्रेड होगा, तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, आइसोलेशन में रखना पड़ता है। यू कैन नॉट मीट और cannot even give moral support, that's the worst thing about it, right। तो इसीलिए हमको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है और घर में बैठे रहना है, स्प्रेड होने से बचाना है, बट दैट डजंट मीन कि आपको सेडेंटरी रहना है ना। क्वारंटाइन डजंट मीन सेडेंटरी, आप फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो, आप फिर भी अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। कैसे, विल टॉक अबाउट दैट एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कंक्लूजन, कैन एक्सरसाइज प्रिवेंट इट और नॉट। बट इतना अगर आप लोगों को बैकग्राउंड बेसिक समझ रहा है तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद इट। आगे बढ़ेंगे अब हम, बट उसके पहले आप लोगों का थम्स अप चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ताकि हम आगे का डिस्कशन करें। आई कैन सी मेनी कमेंट्स आल्सो कमिंग इन एंड हम इसको अभी आंसर करेंगे। बिफोर दैट यू हैव टू गिव अ थम्स अप। ओके, मनीष शर्मा ने थम्स अप दिया है, अर्चना जी ने भी थम्स अप दिया है, ग्रेट। हु एल्स एक्नॉलेज? उसके पहले के कमेंट्स अभी मैं देखूंगा फिर आपके थम्स अप के बाद। $689 people live with us, 690 and 2,210 hearts. Wow, good to see that. Chalo, I'll go through the comments now. Ranti ji, Alvin, hello. I'm cooking myself and now finished chest and tricep curls. Tricep curls नहीं होते, bicep curls होते हैं, tricep extensions होते हैं. With weights and resistance band workout and also done 2 minutes plank variations to and leg raises with home ladder support and home weights for push-ups and pull-ups too. Awesome, very good job. It can only build immunity. Okay, so exercise in home and safe environment. Yes, absolutely, Manish ji. Snehil ji, hello Snehil ji, how are you? Pradeep ji, 1k hearts. Yes, now it is 2.3k. Can we wear mask at home? Not required. Mask
कब यूज़ किया जाना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो रही है, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द वायरस, इट कुड बी जनरल कोल्ड, बट यू शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि यू कैन नॉट लेट योर इम्यूनिटी स्लो डाउन एटलीस्ट फॉर नाउ। स्लो इम्यूनिटी या फिर लो इम्यूनिटी कुड बी ओपन हाउस फॉर ऑल द जर्म्स एंड वायरसेस, नॉट नेसेसरीली कोरोना, बट कोई भी जर्म्स वायरसेस जिससे तबीयत खराब हो सकती है। और आजकल जनरल अगर एलर्जी की वजह से कोई भी एलर्जी की वजह से भी कोई अगर छींकता है तो उसको लोग ऐसी नजर से देखते हैं जिससे उसको कोरोना है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्नीज और टू हैव कोल्ड एटलीस्ट फॉर नाउ। तो घर में मास्क तब पहनना है या बाहर मास्क तब पहनना इफ़ यू फील कि आपको सर्दी खांसी है और आपकी सर्दी खांसी किसी को स्प्रेड हो सकती है, तब पहनना। या फिर आप किसी ऐसी क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हो जहाँ पे यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किसको सर्दी खांसी। अब किसी के क्राउडेड प्लेस पे आप अचानक कोई छींक दिया तो आप क्या कर लोगे? दैट केस मास्क वगैरह प्रिवेंट करना है, बट अभी तो वो चांसेस ही नहीं है बिकॉज घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू हैव लिटिल कोल्ड कफ या आपकी फैमिली में किसी को कोल्ड कफ है तो फिर आप पहन सकते हो, वरना नहीं। इन आवर एपी, अच्छा आंध्र प्रदेश, ऑल्सो टिल 31। ओके क्रांति जी, वैक्सीनेशन होगा तो वायरस इफेक्ट हो सकता है। वैक्सीनेशन बाकी चीज़ों का हो सकता है, H1N1 एंड बाकी का, बट कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन अब तक नहीं निकला है बिकॉज दैट्स द फंडा। अगर वो एक बार साइंटिस्ट और डॉक्टर दे आर वर्किंग रिलेंटलेसली ऑन दैट, एंड वो अगर एक बार निकल गया तो फिर चीज़ें वुड बी मच मच बेटर। राइट नाउ दे आर फिगरिंग आउट कि कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन पूरी तरह से निकले। प्लीज टेल, आई होप इट इज अंडरस्टूड। सेहल जी प्लीज आस्क मोर क्वेश्चन, अगर ये वाला और डिटेल में समझना है तो बताइए, आई विल टॉक अबाउट इट। सो घर पर बैठ के कैलोरीज डेफिसिट कैसे मेंटेन करें? यू कैन फास्ट, ड्राई फास्टिंग, इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर सकते हो आप, और होम एक्सरसाइज करके। प्लीज डू टेल। आगे प्रदीप जी थम्स अप, 716 लाइव है, वाओ, आई कैन सी नाउ 754 लाइव। स्नेहिल दिस इज थैंक्स, ऑसम, ग्रेट। सो गाइस, होम वर्कआउट्स, जिम शट डाउन। जिम में या फिर सॉरी आपकी बिल्डिंग में क्लब हाउस होगा, बंद होगा, चालू भी है तो मत जाओ प्लीज। आपकी बिल्डिंग में कौन कहाँ से ट्रैवल करके आया है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। कोई आउट स्टेशन से आया है, कोई आउट ऑफ कंट्री से आया है जो अफेक्टेड है, नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं। अभी वो जिम में नहीं आया, आपके आने से 4 घंटा पहले आके गया, और जो बेंच उसने यूज किया, डंबल्स यूज किया, हो सकता है उस पर वायरस चला गया। यू कैन नॉट सी इट, राइट? अभी तो आपको जिम खाली दिख रहा है, बट आपके पहले किसने यूज किया, यू हैव नो आइडिया। आपका हाथ लगा लिया, हो सकता, चांसेस है। वाई टू टेक चांस? क्लब हाउस में भी मत जाओ, इतना ज्यादा जरूरी। कुछ दिन एक्सरसाइज, जिम की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू स्टिल हैव एन ऑल्टरनेटिव विच यू कैन यूज एट होम। होम वर्कआउट करो। होम वर्कआउट के ऊपर मैंने बहुत सारी क्लासेस किया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट होम एक्सरसाइज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, सारी चीजें बताई हुई है, सो यू कैन वॉच दैट। बट होम एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपके घर में ही इक्विपमेंट्स है तो बहुत बढ़िया, फिर तो नथिंग लाइक इट। जैसे कि डम्बल्स, बार्बल्स, अगर ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है तो वेरी वेरी गुड। अगर नहीं है तो क्या हो गया, आपकी बॉडी वेट तो आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई शो यू कि आई हैव दिस, सो दिस इज अ ट्रेडमिल। यहाँ पे बेंच आपको दिखेगी, ये साइकिलिंग है, राइट? और यहाँ पे आपको थोड़े से डम्बल्स, प्लेट्स, बाबल्स दिखेंगे, फोम रोलर दिखेगा, केटल बेल दिखेगा। सो दिस इज माई वर्कआउट प्रिपरेशन, राइट? आपके पास अगर इनमें से कुछ है, घर में डंबल्स है, रेजिस्टेंस बैंड अगर है, या फिर बाबल्स है, या फिर ट्रेडमिल है, या फिर साइकिलिंग है, या फिर कुछ भी है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट। यू विल गेट अ सिमिलर इफेक्ट लाइक द जिम। जिम जैसा ही इफेक्ट आपको मिलेगा बिकॉज जिम में भी आप डंबल बाबल ही यूज कर रहे हो, मशीन ही यूज कर रहे हो, है ना? ये भी अगर नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो, खुद की बॉडी है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। देर आर सो मेनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू। देर आर more than 30-35 exercises which you can do at home itself with your own body. Which are those exercises? Just to name a few, you can do squats, you can do push-ups, you can do lunges, you can do crunches, you can do leg raises, you can do planks, you can do side planks, you can do pull-ups, you can do tricep. There's so many other exercises, and जितनी exercises के मैंने नाम लिए हैं उनके 3-3, 4-4 या 5-5 वेरिएशन भी कर सकते हो। जैसे कि स्क्वाट्स 4 to 5 वेरिएशन कर सकते हो, लंजेस 4 to 5 वेरिएशन, प्लैंक्स 4 to 5 वेरिएशन, साइड प्लैंक 4 to 5 वेरिएशन। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। इन सारी एक्सरसाइज के वेरिएशंस मैंने दिखाए हुए। सो अगेन यू वांट टू क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर एंड जस्ट स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी ऑल दोज वेरिएशंस। मैंने 5 वेरिएशंस ऑफ प्लैंक बताए हैं, 5 वेरिएशंस ऑफ लंजेस, स्क्वाट्स, साइड प्लैंक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, क्रंच, बहुत सारी चीजें बताए हुए हैं। सो यू वुड वांट टू वॉच दोज वीडियोज इन डिटेल एंड यू कैन प्रैक्टिस एट होम।
अगर इक्विपमेंट्स ही आपको चाहिए थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो यू कैन यूज वाटर बॉटल्स, फिल्ड वाटर बॉटल्स, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, वो यूज़ कर सकते हो। होम टूल्स कैसे यूज़ किया जाए एक्सरसाइज के लिए, ये भी क्लास मैंने किया था 2-3 दिन पहले। यू वुड वांट टू वॉच दैट ऑल्सो एंड यू वुड वांट टू कीप योरसेल्फ फिट विद दैट, ठीक है। सो होम एक्सरसाइजेस करना है। अब होम एक्सरसाइजेस कैसे प्रिवेंट करेगी आपको COVID से, या फिर एक्सरसाइज इन जनरल कैसे प्रिवेंट करेगी COVID से, कोविड-19 से या फिर कोरोना वायरस से, ये अब हम डिस्कशन करेंगे। सो इतना बेसिक अगर आप लोगों को समझ रहा है वंस अगेन तो गिव मी अ थम्स अप। कोई क्वेश्चंस है प्लीज आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस गिव मी अ थम्स अप, वी कैन प्रोसीड फर्दर नाउ। चलो तब तक हम कमेंट्स देखेंगे। क्लब हाउस हम लोग का क्लोज है बिकॉज ऑफ, येस दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। एज ए सेट की बिल्डिंग में कौन कहाँ से आया है, कहाँ से ट्रैवल करके आया है, कौन अफेक्टेड है नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो लेट्स नॉट यूज एनी पब्लिक प्लेस, एनी कॉमन प्लेस विच मोर देन 1 पीपल यूज, या फिर मोर देन, या फिर अपार्ट फ्रॉम ए फैमिली मेंबर यूज। क्योंकि घर में जितने फैमिली मेंबर्स है उनके अलावा और कोई ऐसी जगह है जिसको दूसरे को एक्सेस है, किसी थर्ड पर्सन को एक्सेस है, वो चीज़ मत यूज करो फिलहाल के लिए। मनीष शर्मा, सर माय फादर इज एन आस्थमा पेशेंट एंड ही इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड स्नीजिंग, एवरी टाइम ही स्नीजेस डर लगता है। येस दैट्स व्हाट हैपन। अगर जनरल स्नीजिंग भी है या फिर जनरल कोल्ड एंड कफ है या कोई एलर्जी, जैसे डस्ट एलर्जी, घर में अगर धूल आ गई, कोई छींक दिया, तो डस्ट एलर्जी भी होती है। बाहर जाते हैं किसी को थोड़ी धूल मिट्टी आती है तो छींक आती है, नॉट नेसेसरीली वो कोरोना है या कुछ है, राइट। वो जनरल स्नीज थी। स्नीज क्यों आती है? आपकी नाक में जो थोड़ा कचरा या पार्टिकल्स आते हैं उसको बाहर निकालने के लिए स्नीज आती है। सर्दी में ऑब्वियसली आएगी आपको, बट जनरली जो एलर्जिक स्नीज आती है दैट इज टू रिमूव आउट दैट पार्टिकल फ्रॉम द नोज, राइट। एवरी टाइम ही स्नीज डर लगता है। सो आई वांट टू आस्क ही वेयर मास्क इन होम टू और व्हाट अदर थिंग्स ही कैन डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, ठीक है। उनको ब्रीदिंग प्राणायाम कराइए ताकि उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो। आप विटामिन C का ध्यान दीजिए ताकि उनको जो नॉर्मल स्नीजिंग वगैरह या जनरल कोल्ड जो हो रहा है वो पूरी तरह से ना हो। मल्टीविटामिन्स, स्पेशली विटामिन C एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी कोल्ड एंड कफ के लिए और सोर थ्रोट के लिए या जनरल के लिए भी। इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आप उनको दे सकते हो, इम्यूनिटी बूस्टिंग शॉट्स आप दे सकते हो। कैसे प्रिपेयर करना है वो शॉट्स? स्मैश जिंजर गार्लिक, उसको एक बोल में डालो, ब्लैक पेपर डालो, हल्दी डालो 1 चम्मच, उसको बॉईल करो, ठीक है। फिर उसको स्ट्रेन करके एक कप में या ग्लास में निकालो। थोड़ा सा नींबू निचोड़ो। अगर नींबू नहीं निचोड़ रहे हो सर्दी की वजह से या फिर अगर आर्थराइटिस है फॉर एग्जांपल, तो नींबू नहीं निचोड़ रहे तो भी चलेगा। वो शॉट्स आपको लेना, बहुत सारा एक साथ में नहीं लेना, 2 सिप या 3 सिप लेना। बहुत ज़्यादा एक साथ लोगे पेट में जलेगा, ठीक है। तो 2 या 3 सिप्स आपको 2 से 3 बार दिन में लेना। बेस्ट इम्यूनिटी, क्योंकि ब्लैक पेपर इम्यूनिटी बूस्टर, टर्मरिक इम्यूनिटी बूस्टर, जिंजर इम्यूनिटी बूस्टर, गार्लिक इम्यूनिटी, तो बहुत अच्छा है ये। इसको आप ले सकते हो, सारे के सारे लोग ले सकते हैं। कोल्ड एंड कफ है तो भी, नहीं है तो भी, आगे नहीं होगा आपको कभी भी, ठीक है। सर जैसे आपने बोला डोर एंड ऑब्जेक्ट भी वायरस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इज देयर एनी ड्यूरेशन एंड हाउ लॉन्ग इट इज प्रेजेंट? देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लाइफ कैपेसिटी होती है उसकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला गया कि एयर में 3 घंटे रहता है, या फिर किसी मेटल पे या स्टील पे 8 घंटे रहता है, किसी के बॉडी में 16 घंटे रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। सो देयर इज अ लाइफ स्पैन ऑफ दैट वायरस। इसीलिए तो होम क्वारंटाइन किया गया, ताकि अगर बाहर कहीं पे 6 घंटा, 8 घंटा या 12 घंटे वाला है कोई किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर कोई टच ही नहीं कर रहा है 12 घंटे तक, उस पर कोई टच ही नहीं कर रहा है 24 घंटे तक, तो वहीं पे रह रहे मर जाएगा। स्प्रेडिंग नहीं होगा फिर उसका, राइट। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द कर्फ्यू। आपने तो जिम ही खोल के रखा है। सो दिस इज माई ब्रदर्स प्लेस, ही हैज इट। मैंने जिम इज ग्रेट, थैंक यू अर्चना जी। मनीष जी थैंक यू। अगर जिम में कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा है एंड भी बेंच यूज़ करा है तो उसे बेंच में वायरस कब तक प्रेजेंट रहेगा? अब कम से कम आप 3 घंटे का पकड़ के चलो, कम से कम 3 घंटे की लाइफ स्वयं बोली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो 3 घंटा तो आप पकड़ के ही चलो। अनिरुद्ध जी हाई, गुड मॉर्निंग आफ्टर मेनी डेज। सर एयर में नहीं रहता है, एज पर WHO इट सेटल डाउन। आई हैव yesterday only I have got to know about it because I was also believing कि हाँ एयर में नहीं होता है, बट yesterday I got to know from a verified लिंक कि वहाँ से उसमें बोला गया कि 3 घंटा, बट यू नेवर नो ना, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस। नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट फॉर अवेलेबल सजेशन। अब रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये टिप अगर एरिना में भी एक बार प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल बी वेरी श्योर आई विल डू दैट। आप मुझको अरीना में पिंग कर दो। आई कैन सी मेनी मैसेजेस इन अरीना, बट मैंने चेक किया नहीं है उसको। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू ऑल योर मैसेजेस, सारे लोगों के, एंड आई विल आंसर देम, ठीक है। इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म में कुछ लिंक है? इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म इज द बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट, इम्यूनिटी इज योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है।
इट्स नॉट एयरबोर्न. अर्चना जी से सर प्लीज गो थ्रू माई मैसेजेस इन अरीना इट्स पेंडिंग सिस में. ओ आई गो थ्रू. मैं वही अभी बता रहा था कि आई हैव नॉट बीन एबल टू रिस्पॉन्ड टू अरीना मैसेजेस विच आई डू इट बाय टुडे ओनली. ओके, अनिरुद्ध सेज यस. ओके, परफेक्ट. सो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. नॉट ओनली वेट लॉस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, बट बियॉन्ड दैट सबसे पहली चीज होती है ऑर्गन हेल्थ. एक्सरसाइज करने से आपकी ऑर्गन हेल्थ होती है. सबसे जो डैमेजिंग चीज होती है सीओवाईडी की, जो सबसे जाके इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है आपके लंग्स को. ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग हैवी होती है, आप ब्रेथलेस होते हो, ब्रेथलेस आप होते हो, राइट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप अपने लंग्स से एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हो. बिकॉज आप नॉर्मल अभी बैठ के सांस ले रहे हो, इतना फर्क नहीं पड़ रहा. ये एक्सरसाइज करते करते, ट्रेडमिल पे भागते भागते या वेट्स उठाते उठाते इतना कंफर्टेबल आप नहीं रहते हो, आप ब्रेथलेस होते हो, थोड़ा ब्रीदिंग हैवी होती है. दैट मीन्स कि आप अपने लंग्स से भी नॉर्मल मोड में ब्रीदिंग करवा रहे हो. एक्सरसाइज करते हुए लंग्स से ज्यादा मेहनत करवा रहे हो. एज अ रिजल्ट आपके लंग की एफिशिएंसी स्ट्रांग हो रही है, आपके लंग्स की जो सेल्स होती है वो स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज यूटिलाइजिंग द 100% कैपेसिटी ऑफ योर लंग. ओके, sorry for the interruption. Can I please confirm if the audio and video is working fine? मुझे थोड़ा लैगिंग दिखाई दे रहा है. So guys, can anyone please confirm if you're able to see and hear? ओके, सो लंग की एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी. बेसिकली लंग एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग बिकॉज यू यूजिंग द 100% कैपेसिटी ऑफ इट. दिन भर में हम 30 या 40% ही यूज कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज कर पाते, राइट. बट एक्सरसाइज करते वक्त यू एक्टिवेट योर लंग सेल्स, आपके लंग मसल्स को पूरी तरह से आप एक्टिवेट करते हो, जिससे 100% कैपेसिटी यूज हो रही है. एज अ रिजल्ट आपका लंग स्ट्रांग हो रहा है. तो जब आपका लंग्स या फिर आपके सेल्स स्ट्रांग होते हैं तो नो वायरस हो, नो जर्म्स हो, नो बैक्टीरियाज कैन हार्म इट. उसकी वीकनेस की वजह से, उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से वो आपके ऑर्गन को या फिर सेल्स को डैमेज कर पाती. बट एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो नहीं. इसीलिए एक्सरसाइज करने से आपकी लंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है. एज अ रिजल्ट दिस सीओवीआईडी के नॉट, कोविड-19 के नॉट हार्म यू मच. सेकेंडली, डिटॉक्सिफिकेशन. आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स कचरा होता है बाहर फ्लश आउट करता है. सिमिलरली जितने भी वायरस बैक्टीरिया अगर है तो डिटॉक्सिफिकेशन में इट क्लेंजेस इट आउट. ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट मिल रहा है, जिससे कि यू फ्लश आउट ऑल दैट. थर्डली, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बिकॉज वेंस यू एक्सरसाइज you recover from that workout and you are better and bigger and leaner than before. यानी आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी में बहुत ज्यादा है, मसल्स आपके एक्टिवेटेड है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है. इम्यून सिस्टम इज अ सेल्फ डिफेंस सिस्टम विच बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, राइट. इम्यून सिस्टम आपने स्ट्रांग बनाया है तो ऑब्वियसली कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आपको परेशान नहीं कर पाएगा. अगर वो आता भी है अंदर इन केस तो वो इम्यूनिटी उसको फाइट ऑफ करके भगा देगी. तो ये 3 सबसे मेन रीजन है जिस वजह से एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट सीओवीआईडी एंड 100% इट कैन प्रिवेंट. बट एक्सरसाइजिंग स्मार्ट. ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने से होता है तो 4-4, 5-5 घंटे एक्सरसाइज, घर में कुछ काम है नहीं अगर 4-4 घंटे एक्सरसाइज करो, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू एक्सरसाइज स्मार्ट इनफ. 30 मिनट्स, 45 मिनट्स इज गुड इनफ. मॉडरेट इंटेंसिटी. ठीक है, रिकवरी का ध्यान दो, स्लीप अच्छे से लो, प्रोटीन्स अच्छे से ले लो, सो दैट यू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम द workout, और as a result आपकी immunity strong हो. So yes, the answer is yes, it can definitely prevent COVID and it can definitely build up your immunity, it can detoxify, it can improve the efficiency of your lungs, of your organs and protect you from that. Okay, so this was the class for today. Let me go through some comments and then we will sign off. 3850 hearts way, let us quickly make it 5000. 1200 के आसपास हार्ट्स चाहिए. Let us press it quickly and then we will sign off. तब तक मैं थोड़े से comments देख लूँ. ठीक है. तो अपने क्लोथ्स वगैरह 16 आवर्स से किसी को टच नहीं करने देना. अगर है उसमें तो राइट, अगर आपको लग रहा है कि क्लोथ्स आपके किसी के कांटेक्ट में आए थे, आपने कबर्ड में से निकाल के पहना हुआ है तो उसमें तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, राइट.
सर 1 hour of home workout is sufficient for और मोर रिक्वायर नहीं 30 to 45 minutes मैक्सिमम 1 hour ग्रेस पीरियड आप लेके चलो तो 1 hour इज मोर देन इनफ. MS this ongoing classes very wonderful thing has happened. Able to wow Manish ji. So that's a good part कि आप अपना टाइम बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस जो शायद आपको नहीं पता होगी, राइट. डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस. आप डांस की क्लास देख के डांस के बारे में कुछ सीख सकते हो, वर्कआउट क्लास देख के उसके बारे में सीख सकते हो, न्यूट्रिशन देख के उसके बारे में हर एक चीज़ आप ओवरऑल सीख सकते हो. सो बट दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम आई मस्ट से. साइमन ऐसा कुछ तो नहीं है ना, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के साथ ये मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो जाता है. एक्सरसाइज से और स्लीप से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. जितनी बॉडी आपकी क्लीन रहेगी, डिटॉक्सिफाइड रहेगी, उतना मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा. ग्रीन टी एट नाइट फूड ऑप्शन नो, डोंट टेक इट एट नाइट. मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में, इवनिंग 3 या 4 तक का ले सकते हो. शाम में मतलब बिकॉज कैफीन की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं. मुकेश थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच. Pradeep ji, great, able to see in here, fantastic. Thank you for the confirmation. Anirudh thumbs up. Dinesh ji, hello. सर अब जिम नहीं जा रहे, वे लेना है. डेली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना ही है आपको, चाहे आप जिम जाओ या मत जाओ. डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो मत लो वे, फुलफिल नहीं हो रहा है तो ले लो. दिनेश जी हेलो. अर्चना जी थैंक यू, परफेक्ट. चलो गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. अभी 11 बजे कोच डॉक्टर सुप्रिया जी की क्लास स्टार्ट हो गई है. उनकी क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है. एंड उनके टॉपिक है वाई ओल्डर एडल्ट्स शुड बी मोर केयरफुल फॉर कोविड-19 कोरोना वायरस. तो ज़रूर देखिए उनकी क्लास. मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे विद अनदर क्लास. एंड अभी जस्ट क्लास जैसी खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा रेट करने का, रिटर्न फीडबैक देने का. रेटिंग दे दो, रिटर्न फीडबैक दे दो, एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास वो भी बोल दो. सो सी यू टुमारो एट 10:30 AM. टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून. स्टे सेफ एंड बी द फोर्स.